Hello and welcome to all of you. Today we are going to start the new chapter, which is chapter number 19, the United Nations. Okay, so let's start our chapter. So, the European went to Asian, African, and American countries in search of raw materials for their factories and markets for the goods made in their countries. है ना? Raw materials means बेटा we know that कि the Europeans they wanted the indigo to be grown on Indian field very much है ना, when we are under their control. So like that they collect the raw material, not only indigo, they collect many raw material like the silk from China, है ना. तो China is Asian country. Okay, from Africa also they collect the bamboo to make the bamboo sticks and many other things. Okay, and American countries से भी in search of raw materials for the factories or markets. ठीक है, they established colonies in many part of Asia, Africa, North America, South America, Australia, Oceania. So after that, the Europeans fought among themselves to gain more control and benefits. This was the main cause of First World War in 1914. Actually में क्या हो रहा था? देखो, the Europeans they were traveling all over the world, है ना. They have traveled to our country also. In 1600 they got the फरमान from the Jahangir or Bahadur Shah Zafar too, है ना, to settle their company. तो later on they started to developing their countries. ठीक है, वो वहीं पर ग्रो करना शुरू हो गए, है ना. और फिर क्या करने लगे कि जो पर्टिकुलर कंट्री थी उसकी इकोनॉमिक कंडीशन को गिराने लगे, है ना. एंड दे आर जस्ट पार्टिसिपेटिंग इन देयर पॉलिटिकल और ऑफिशियल मैनर्स. तो इस वजह से only Europe is the main cause of the First World War that was started in 1914 and ended in 1990. ठीक है, तो बेटा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब से कब तक चला? 1914 से लेकर के 1919 तक, है ना. एंड इन इट इज़ दैट टाइम व्हेन वी हैव द जलियांवाला बाग मसकरे, है ना. You have heard about the greatest loss to death in history. For us, it is Jallianwala Bagh massacre, है ना, in which many men, women, even the childrens were killed. Okay, और उसके बाद आफ्टर दिस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर हैपेंस इन 1939, है ना. एंड इट विल गो अप टू 1945, है ना. द टेन्योर ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इज वॉट 1914 to 1919 and second is what 1939 to 1945. So you have to keep in this you have to keep this in your mind. Okay, you if you want you can note it down somewhere. Now the second world war ended up with dropping of atom bombs on Hiroshima and Nagasaki in Japan in 1945. Look, actually US America they attacked, है ना. they first this is the first country to use the atom bombs. Atom bombs means uh, you will learn that in higher classes that one atom it will split into four atoms, है ना. means wait a minute. हाँ, ओके. तो वन एटम इट विल गो इन द फोर वे, है ना. 1 2 3 4. ऑल्सो दीज फोर विल स्प्लिट themselves into four parts, है ना. फिर एवरी दीज फोर पार्ट्स विल स्प्लिट them in four parts, है ना. तो दिस is the main cause that today, even today, the if the children जो आज भी वहाँ पर बच्चे होते हैं, वैसे तो मेन जगह पर अभी भी पॉपुलेशन क्रिएट ही नहीं हुई है, फिर भी जो बच्चे होते हैं दे आर फिजिकली डिसेबल्ड, है ना. कहीं उनका पैर मुड़ा हुआ होता है, मीन्स दे आर नॉट प्रॉपरली डेवलप्ड इन द मदर्स वोम. ओके, मिलियंस ऑफ सोल्जर्स एंड अदर पीपल वर किल्ड ड्यूरिंग दीज टू वर्ल्ड वॉर्स. ठीक है, बहुत लाखों लोग मर गए थे. फॉर्मेशन कैसे हुआ? फिर यूनाइटेड नेशन है क्या? देखो, यूनाइटेड का मतलब होता है टुगेदर, है ना. सब लोग मिल करके फॉर्मिंग अ नेशन.
फॉर देयर वेलफेयर, है ना, कि इफ सम एक्सटर्नल कंट्री अटैक्स यू, वी विल सपोर्ट यू, है ना, दिस इज द यूनिटी. तो द लीडर्स ऑफ मेनी कंट्रीज इन द वर्ल्ड फील दैट वॉर इज नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ एनी प्रॉब्लम, है ना, बिकॉज बेटा वॉर क्रिएट्स सो मच डिस्टर्बेंस इन द कंट्री, not only economically, physically also, from many ways. Okay, so the nations of the world wanted to live in peace so that they can prosper. Many countries in the world wanted to form an organization, और यही सब कि they want every country to be live in peace. That is why they wanted to form an organization which help the people, है ना. तो after first world war the League of Nations was formed to prevent वॉर्स इन फ्यूचर, है ना, आगे जाके वॉर को रोकने के लिए. आज हम देखते हैं अब कहाँ वॉर होता है ना. इन 1962 वी फॉट अगेंस्ट चाइना, इन 1965 वी फॉट अगेंस्ट पाकिस्तान. ओके, सो एट दैट टाइम इट हैपेंड बट नॉट नाउ, है ना. यू हैव नॉट हर्ड दैट रिसेंट टाइम्स वी आर हैविंग द वॉर ना, just for the region of Kashmir only. The Pakistanis attacked us, है ना, and that not a serious issue. Actually, it is a serious issue, but it is not a war. Okay. After Second World War, 1939 to 1945, which lasted for 6 years, the United Nations organizations was formed in 1945. So this is the exact year you have to keep in your mind. It is very very important, है ना, कि when did the organization United Nation organization was formed. तो it was nothing but in 1945. ठीक है. This was first used by Franklin D. Roosevelt. Remember his name also, है ना, and then the president of USA. इन दोनों ने मिल करके they have formed this organization. The Charter of United Nations Organization UNO was signed by 50 nations on 24 October 1945, है ना. तो स्टार्टिंग 1945 से हो ही गई थी, जैसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ और एंड हुआ उसके बाद से. बट दिस इज़ द एग्जैक्ट डेट 24 अक्टूबर 1945 ऑन विच, उसमें क्या हुआ था देखो. ऑर्गेनाइजेशन तो प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए, है ना, और रोजवेल्ट ने मिलकर के बना लिया था, बट इट वॉज टू बी ज्वाइंड बाय द अदर नेशंस, है ना, बाकी की कंट्रीज भी तो जुड़नी चाहिए थी. तो दिस वॉज द डेट ऑन 24 अक्टूबर 1945 द पेटिएट वॉज साइंड बाय 50 nations, okay, in San Francisco, which is in USA. तो UNO after 1950 has came to be known as United Nations. और UNO को क्या बोला गया फिर, यूनाइटेड नेशंस. और यूनाइटेड नेशन डे ये किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है. ऑब्वियसली देखो यहाँ पर कि जो फॉर्मेशन है साइंड हुआ था वो 24 अक्टूबर को हुआ था. दैट इज़ बाय 24 अक्टूबर इज नोन एज द वर्ल्ड्स United Nation Day. Okay. Now, if we talk about the recent time, so there are total 193 countries under United Nations, है ना. और हमारी इंडिया ने कब ज्वाइन किया था, 30 अक्टूबर को, है ना. तो आफ्टर 6 डेज, याद रखना है ऐसे कि आफ्टर 6 डेज, तो याद रहेगा कि 24 अक्टूबर को क्या है होता है, यूनाइटेड नेशंस डे. और इसके 6 दिन बाद, है ना, तो ऑन 30 अक्टूबर 1945 इंडिया ज्वाइंड द यूनाइटेड नेशंस. ठीक है. मेंबरशिप ऑफ यूनाइटेड नेशन इज ओपन टू ऑल पीस लविंग कंट्रीज एंड हेडक्वार्टर्स ऑफ द यूनाइटेड नेशंस आर इन न्यूयॉर्क यूएसए. द यूनाइटेड नेशन हैज़ 6 ऑफिशियल लैंग्वेजेस. अब देखो not every country know each language, है ना, but there must be some people who definitely know one of these languages, है ना. These are the major languages of world, है ना. English highly spoken language, then Chinese, है ना, French, Russian, Spanish and Arabic. ठीक है. तो ऑलमोस्ट दे हैव थिंक अबाउट दैट लॉट, है ना. फर्स्ट ऑफ ऑल दे आर ट्राइंग टू टेक द हिंदी, बट इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर मैनी कंट्रीज टू अंडरस्टैंड द हिंदी, है ना. तो दीज आर द 6 ऑफिशियल लैंग्वेजेस,
है ना, कि जो भी उनके डॉक्यूमेंट्स बनेंगे ना, कि उन्होंने कुछ पे साइन किया या कुछ भी किया, तो दे विल बी इन ऑल 6 लैंग्वेजेस। ठीक है। तो द यूएन हैज़ इट्स ओन फ्लैग एंड एम्बलम लाइट ब्लू इन कलर। उनका एम्बलम भी अलग है, उनका फ्लैग भी अलग है बेटा। ओके। मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या थे इसके? तो देखो, सबसे पहले तो यही था ना कि मेन ऑब्जेक्टिव कि टू मेंटेन द यूनिटी ऑफ सेवरल नेशंस और कंट्रीज टुगेदर, है ना सब। और दूसरा क्या था कि उनको पीस और सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाना, है ना। तो देखो, फर्स्ट टू मेंटेन पीस एंड सिक्योरिटी अमंग द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड, टू डेवलप फ्रेंडली रिलेशंस अमंग द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड, सब में फ्रेंडली रिलेशन बनाना। फिर सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ द नेशन इन अ पीसफुल एंड कॉरपोरेटिव मैनर। ठीक है, मतलब सबके जो है पीसफुल तरीके से सारी प्रॉब्लम्स दूर करना। जैसे आपने देखा होगा कि व्हेन द पेंडेमिक टाइम स्टार्ट्स, तो वन wait a minute, one more organization is there whose name was World Bank। ठीक है, वर्ल्ड बैंक। दिस इज नॉट द बैंक ऑफ इंडिया, बट वी आर इन प्रॉब्लम, है ना, हम प्रॉब्लम में थे। तो वर्ल्ड वी हैव टेकन द लोन ऑफ 500 करोड़ फ्रॉम द वर्ल्ड बैंक, है ना, वर्ल्ड बैंक। और फिर लिया था एनडीबी से, न्यूली डेवलप्ड बैंक। ठीक है। तो ये क्यों देते हैं हमें? ये हमारे इंडिया के तो है नहीं। तो ये किसके अंडर में काम करते हैं? यूनाइटेड नेशंस के, कहीं ना कहीं, है ना। या फिर कौन सा, वर्ल्ड बैंक के अंडर में काम करता होगा एनडीबी। ठीक है। तो ये पूरे वर्ल्ड को, ऐसा नहीं कि सिर्फ हमें, पूरे वर्ल्ड को पैसे प्रोवाइड करवाता है ना। नाउ, टू प्रोटेक्ट ह्यूमन राइट्स एंड फ्रीडम्स of people based on race, religion, language, and sex, to help the member nations to achieve the above objectives. ठीक है। तो these are the 5 main objectives. I don't think that you need to uh, summarize more and more about these objectives, है ना। once you just read it, you will be able to write it anywhere। ठीक है। So this is the United Nations headquarter which is in New York। okay। फिर देखो, दिस इज द सिक्योरिटी काउंसिल। सिक्योरिटी काउंसिल मीन्स एवरी डिस्कशन बेस्ड ऑन द वॉर्स और पीसफुल रिलेशंस विद द अदर कंट्रीज और द नेशंस वर डिस्कस्ड हेयर, है ना। यू हैव to see that there are many peoples, and when they all agree at one document, then it is to be passed by the UN। जब सभी लोग एक पर सहमत होते हैं कि यस, नाउ दिस डिसीजन इज गुड, है ना, तब जाकर के इट गेट्स अप्लाइड टू दैट पर्टिकुलर कंट्री। ओके। देखो, ऑर्गन्स क्या होते हैं? ऑर्गन्स मीन्स उनके पार्ट्स, है ना। तो देखो, फर्स्ट ऑर्गन इज द जनरल असेंबली। ये मेन ऑर्गन है यूनाइटेड नेशंस का, है ना। जैसे हमारे यहाँ पर पार्लियामेंट है ना, इट कंट्रोल्स फुल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, है ना, हमारा सारा देखता है वो। बिकॉज इट द प्रेसिडेंट कम्स अंडर द पार्लियामेंट, है ना। वी हैव 2 विंग्स ऑल्सो, दैट इज लोकसभा एंड राज्यसभा। ठीक है। तो एवरी मेंबर nations has one representative in it। each representative has the right of one vote in the general assembly। देखो, जितने भी नेशंस हैं, सबका एक रिप्रेजेंटेटिव होगा ना बेटा, तभी तो वो जाकर के क्या करेगा, इट विल रिप्रेजेंट हिज और हर ओन कंट्री, है ना। वो अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये बंदा वोट भी कर सकता है ना। ही हैज़ द राइट टू वोट टू इलेक्ट द प्रेसिडेंट ऑफ यूएन, है ना, इलेक्ट द प्रेसिडेंट ऑफ यूएन। ओके। So, if we talk about the recent means who is the recently president of United Nations, है ना, कौन है हमारे यहाँ के प्रेसिडेंट अभी यूनाइटेड नेशंस के? हिज नेम वॉज वोल्कान बॉस्कीर। वोल्कान बॉस्कीर। ठीक है। ही इज़ द रिसेंट प्रेसिडेंट ऑफ UN। okay। Now each represented have
has the right of one vote in General Assembly. It means at least once in a year in a month of November. हर साल कभी ना कभी तो सब लोग मिलते ही होंगे ना, तो दैट इज़ इन द मंथ ऑफ नवंबर, जहाँ जब वो लोग मिलते हैं, ठीक है। नाउ अनदर ऑर्गन है सिक्योरिटी काउंसिल। सिक्योरिटी काउंसिल मीन्स ये इस पूरे मेंबर्स की सिक्योरिटी देखता है, ठीक है। इट वर्क्स फॉर द सिक्योरिटी एंड इंटरनेशनल पीस, और जब सिक्योरिटी होगी तो ऑब्वियसली देयर विल बी पीस, है ना। इट हैज़ 15 मेंबर्स, 5 ऑफ देम्स आर परमानेंट मेंबर्स एंड अदर 10 आर नॉन परमानेंट मेंबर्स इलेक्टेड फॉर अ टर्म ऑफ 2 years। तो कुछ तो जो 5 पर्सन हैं दे आर इलेक्टेड परमानेंटली, मीन्स दे हैव द रिटायरमेंट एज, है ना, समथिंग अबाउट 70 years। और बाकी के जो 10 हैं दे गेट री इलेक्टेड आफ्टर एवरी 10 years, है ना, सॉरी आफ्टर एवरी 2 years। द परमानेंट मेंबर्स ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल आर यूएसए, रशिया, यूके, फ्रांस एंड चाइना, ठीक है। सो दीज आर द परमानेंट मेंबर्स ऑफ यूएन, ठीक है। फिर आता है मेन द सेक्रेटेरिएट। ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है ना। तो द सिक्योरिटी जनरल अपॉइंटेड फॉर 5 years, इसमें एक सिक्योरिटी जनरल होता है विच इज़ द हेड ऑफ द सेक्रेटेरिएट, है ना। जैसे एक कंट्री में प्रेसिडेंट की पोस्ट होती है ना, ऐसे ही बेटा इसमें सेक्रेटेरिएट की है, ठीक है। तो इट इज़ द हेड ऑफ द सेक्रेटेरिएट, ही इज़ मोस्ट पावरफुल पर्सन इन द यूनाइटेड नेशंस, और वी कैन से दैट इट इज़ द फर्स्ट पर्सन, ही इज़ द फर्स्ट पर्सन ऑफ यूएन। Okay, at present, Antonio Guterres is the Security General of the United Nations. कौन है बेटा आज? आज है एंटोनियो गुएत्रेस, ठीक है। द सेक्रेटेरिएट ऑल्सो लुक्स आफ्टर द प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज लेड डाउन of other organs of the United Nations. Look, he is the most powerful man of the world now, एंटोनियो ग्यूतरेस। ये 9th सिक्योरिटी जनरल हैं, सेक्रेटरी जनरल हैं, ओके। फिर इकोनॉमिक और सोशल काउंसिल, ये क्या करता है? देखो, वर्ड इकोनॉमिक इज एडेड, इकोनॉमिक मीन्स वेल्थ, पैसा, ठीक है। तो द यूनाइटेड नेशन हैज़ मैनी एजेंसीज टू हेल्प द पुअर, द सिक एंड द इलिटरेट्स, सबको हेल्प करते हैं ये। द काउंसिल हैज़ 16 मेंबर्स, इट वर्क अंडर द जनरल असेंबली, इट लुक्स इनटू हाउसेज सच एज ह्यूमन्स, इक्वालिटी ऑफ वुमेन एंड रेगुलेशन ऑफ ट्रेड, ठीक है। इन सब के लिए जितने भी ह्यूमन राइट्स हैं, कि इसी के अंडर में आपने देखा होगा कि इंडिया में जो फांसी की सज़ा थी दैट हैज़ बीन कैंसल्ड नाउ, है ना। हाँ, जिसने उस टाइम का क्राइम किया हो, जैसे आफ्टर 2003 जो फांसी की सज़ा है वो माफ़ कर दी गई थी, है ना। वी कांट हैंग्ड एनी वन टू डेथ। तो उसके पहले अगर उसने क्राइम किया हो दैट इज़ सेपरेट इशू, बट नाउ अब नहीं होगा, है ना। इक्वालिटी ऑफ वुमेन, वुमेन की इक्वालिटी के लिए ऐसा नहीं हो कि जैसे पहले होता था तो वुमेन आर नॉट अलाउड टू गो हेयर एंड देयर, दैट टाइप ऑफ इशू, ठीक है। नाउ फिर वी हैव अ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस मीन्स यहाँ पर क्या है, परमानेंट 15 जजेस होंगे, है ना, और वो पूरे साल काम करते हैं, ठीक है। किसी भी दो कंट्रीज़ के बीच में जो डिस्प्यूट होता है ना, जैसे अभी हम माने कि इंडिया और चाइना के बीच में हुआ था सियाचिन बॉर्डर को लेकर के, जो हमारी जम्मू कश्मीर में है ना। ये पार्ट देखो, ये कुछ इस तरीके से है ना हमारा जम्मू कश्मीर पार्ट, ये राजस्थान वाला। तो यहाँ ये जो बॉर्डर है ना, ये है सियाचिन बॉर्डर जिससे चाइना लगा हुआ है ना। तो ही अटैक्ड ऑन दैट, और वो क्या किया था, बहुत सारा सामान लेकर के, वेपन्स लेकर के यहाँ पर परमानेंट शिफ्ट हो गया था। तो दैट्स वाई आफ्टर दैट इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस केम इनटू एग्जिस्टेंस, है ना, हमारे पास आई, और ही सॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन इंडिया एंड चाइना, है ना। नाउ डिड यू नो डॉक्टर नागेंद्र सिंह was of India was president of ICJ from 1985 to 1988, ठीक है। तो आई थिंक ही इज़ द ओनली इंडियन, है ना, टू बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ओके। नाउ द ट्रू ट्रस्टीशिप काउंसिल। ट्रस्टीशिप का मतलब होता है जो ट्रस्ट होते, है ना। ट्रस्ट का मतलब जैसे जो फंडिंग करते हैं, जो प्रोवाइड करवाते हैं एक बैलेंस, है ना। तो दिस काउंसिल वॉज सेटअप टू लुक आफ्टर 11 टेरिटरीज इन द वर्ल्ड कॉल्ड ट्रस्ट।
दीज टेरिटरीज वर फॉर्मर कॉलोनीज अंडर जर्मनी एंड जापान। पहले ये क्या हुआ करती थी, पहले कॉलोनीज हुआ करती थी, फिर सेपरेट कंट्रीज या टेरिटरीज बन गई। दे वर नॉट इंडिपेंडेंट एट दैट टाइम, उस टाइम इंडिपेंडेंट नहीं थी, है ना। एज ऑल ऑफ देम हैव नाउ बिकेम इंडिपेंडेंट कंट्रीज, जैसे हमारी इंडिया भी है ना, पहले थोड़ी थी 1947 से पहले। तो द ट्रस्टीशिप काउंसिल वॉज डेवलप्ड इन वॉज डिजॉल्व्ड इन 1994। फिर आते हैं कुछ इम्पोर्टेंट एजेंसीज, है ना। एजेंसीज कैसे, जैसे है यूनिसेफ, यूनेस्को। यूनेस्को का मतलब होता है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, है ना, याद रखना, यू हैव टू रिमेंबर इट्स फुल नेम। व्हाट, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। देखो यहाँ पर एजुकेशन, साइंस एंड कल्चर, इन तीन चीज़ को लेकर के बहुत ही ज़्यादा प्रोत्साहित किया जाएगा किसी को, है ना। इट्स मेन एम इज़ टू एलिमिनेट इलिटरेसी फ्रॉम द वर्ल्ड। इलिटरेसी का मतलब है पीपल मस्ट नो हाउ टू रीड एंड राइट, दैट इज़ कॉल्ड द लिटरेट पीपल, है ना। हम लिख सकते हैं और पढ़ सकते हैं, देन वी आर लिटरेट। जो नहीं कर सकते वो इलिटरेट, है ना। तो इस इलिटरेसी को कम करने के लिए ही ये इसका मेन एम है, ठीक है। इट कैन इनकरेजेस इंटरनेशनल कॉरपोरेशंस in education, science and culture. It protects human rights and helps to preserve cultural helps to preserve cultural heritage। हमारी जो भी क्या कहते हैं इसको, धार्मिक वो है, वेट अ मिनट, व्हाट वी से इट इन हिंदी, लीव इट, जो भी हमारी चीज़ें हैं, है ना, धरोहर, हाँ, विश्व धरोहर हैं, जैसे अबर खजुराहो मॉन्यूमेंट और सांची स्तूप आदि आर द मॉन्यूमेंट्स ऑफ अवर कंट्री। बट और भी जहाँ की भी है ना, उन सबको, हर एक पर्टिकुलर को, जैसे हमारे यहाँ पर यूनेस्को साइट कौन सी है, खजुराहो टेम्पल्स, दीज कम्स अंडर द यूनेस्को हेरिटेज, है ना। तो इसी के अंडर में ही वो काम करते हैं, ठीक है। नाउ यूनाइटेड यूनिसेफ, तो लुक, इन इट्स फुल फॉर्म इट इज़ रिटन दैट चिल्ड्रंस एमरजेंसी फंड, है ना। तो जो छोटे बच्चे होते हैं, दे आर वे नॉट फिजिकली डेवलप्ड और दे देयर पेरेंट डाइड, है ना, कुछ भी ऐसी ट्रेजिडी होती है, तो इन सब ये बच्चे एक जगह पर गैदर होते हैं, है ना, ऑर्फनेज में। फिर वहाँ पर जो है उसकी देख रेख कौन करता है, दैट इज़ यूनिसेफ, है ना। ऑल द एनजीओस, आपने सुना होगा एनजीओ के बारे में, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, वो सारे इसके अंडर में ही काम करते हैं, ठीक है। तो इट वर्क्स फॉर द वेलफेयर ऑफ चिल्ड्रन ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है, उनको हर चीज़ प्रोवाइड करवाना। फिर आता है WHO। WHO एक ऑर्गेनाइजेशन है जो वर्क करता है इम्प्रूविंग हेल्थ कंडीशन ऑफ द पीपल ऑफ द वर्ल्ड, है ना। हमने यूनेस्को देखा, जो आपकी कल्चरल हेरिटेज साइड, रेस, सेक्स, रिलीजन, सब चीज़ों से प्रोटेक्ट करता था। सेकंड देखा यूनिसेफ, विच प्रोवाइड्स और विच इम्प्रूव द क्वालिटी और द इम्यूनिटी एवरीथिंग अबाउट द चिल्ड्रन फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, है ना। और ये क्या करता है WHO, ये इम्प्रूव करता है हेल्थ कंडीशंस को सारी पीपल्स की, है ना। इट इज़ कंटिन्यूसली वर्किंग टू फाइट अगेंस्ट डिसीजेज सच एज मलेरिया, ट्यूबरक्लोसिस, कैंसर, एड्स, बर्ड फ्लू, स्वाइन फ्लू, एग्जेक्ट्रा। अब इस एग्जेक्ट्रा के पहले एक और लिख लो नाम, जो है COVID-19, इसके लिए भी तो यही काम कर रहा है ना। नाउ फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, दूसरा ये क्या है, एक और ऑर्गेनाइजेशन है। देखो फूड और एग्रीकल्चरल, तो जितना भी फूड और एग्रीकल्चर से रिलेटेड होगा वो सारा काम कौन देखेगा, ये देखेगा आपका फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जिसको देखो यहाँ पर लिखा है फियाट पेनिस, ठीक है। इट्स मोटो, इसका मोटो क्या होता है, फ्रीडम फ्रॉम हंगर, भूख से आज़ादी, ठीक है, मतलब टू प्रोवाइड द फूड टू एवरी पर्सन, है ना। इट्स लेटिन मोटो, इसी को लेटिन लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, फ्रीडम फ्रॉम हंगर को फियाट पेनिस, ओके। स्टैंड्स फॉर लेट देयर बी ब्रेड, मतलब चलो यहाँ पर क्या है, खाना है। इन इंग्लिश लैंग्वेज, इट हेल्प्स नेशन ऑल ओवर द वर्ल्ड टू इंक्रीज द फूड प्रोडक्शन, ठीक है, तभी तो उसके साथ फूड के साथ एग्रीकल्चर जुड़ा है, ठीक है। फिर आता है ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, लेबर, तो नाम से ही समझ में आता है लेबर्स, जो भी वर्कर्स हैं उनको प्रोटेक्शन देने के लिए, उनके लिए और उनको एम्प्लॉय देने के लिए
इसका फॉर्मेशन हुआ था। ठीक है, फिर अचीवमेंट्स देखें हम, इसके अचीवमेंट्स क्या क्या थे। तो देखो अभी तक हमने पार्ट्स में कौन कौन से पढ़े। पहले यूनेस्को पढ़ा, है ना। यूनेस्को क्या करता है, वो हमारी विश्व धरोहरों को प्रोटेक्ट करता है। फिर यूनिसेफ देखा, जो विश्व के पूरे बच्चों को प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, आफ्टर दैट वी हैव सीन अबाउट WHO, वी हैव रेड अबाउट इट, है ना। दिस इम्प्रूव द हेल्थ कंडीशन ऑफ पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। Then we have seen the FAO, which is Food and Agricultural Organization, है ना। आफ्टर दैट ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, नाउ अचीवमेंट्स ऑफ UN। तो यूनाइटेड नेशंस हैव बीन सक्सेसफुल इन मेंटेनिंग पीस इन द वर्ल्ड, है ना। ये सक्सेसफुल है, इसने बहुत से रोके हैं। जैसे कौन कौन से रोके हैं, तो वॉर्स इन कोरिया, वियतनाम, है ना। द UN हैज़ बीन एबल टू प्रिवेंट द यूज़ ऑफ डिस्ट्रक्टिव वेपन्स। नहीं तो ऐसा होता कि जो कंट्री थोड़ी बहुत भी बन नहीं रही है, पता चला कि जैसे नाउ चाइना वांटेड द सियाचिन पार्ट, तो सपोज ही जस्ट थ्रो द एटम बॉम्ब ऑन अस, तो हम तो ख़त्म ही हो जाएंगे। फिर तो आराम से वो पूरा हिमालय वाला पार्ट कवर कर सकता है ना। तो इन सबको भी रोका है, जितने डेडली वेपन्स थे। और UN बहुत एक्टिव है हर काम करने में, पीस कीपिंग ऑपरेशंस सारे। ठीक है, तो हेयर इज़ अ चेक पॉइंट वी हैव। तो व्हेन वाज द लीग ऑफ नेशंस फॉर्म्ड, तो बेटा द डेट इज़ 24 अक्टूबर। वैसे फॉर्म तो जस्ट 1945 में हो गई थी, बट इफ डेट वाज आस्क्ड देन इट इज़ 24 अक्टूबर 1945, है ना। UN डे इसी दिन सेलिब्रेट होता है। वेयर इज़ द हेड क्वार्टर्स ऑफ द UN सिचुएटेड, तो यू हैव टू आंसर दिस, वेयर इज़ द हेड क्वार्टर ऑफ UN सिचुएटेड। नेम एन ऑर्गन, तो ऑर्गन कोई भी दे सकते हैं हम, WHO, यूनिसेफ, यूनेस्को, है ना। दैट इज अप टू यू। सॉरी, नॉट दिस। ऑर्गन, ऑर्गन मीन्स जनरल असेंबली और द सिक्योरिटी काउंसिल, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, तो एनी वन ऑफ देम। ठीक है, नाउ इंडिया एंड द UN, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर अस कि व्हेन डिड इंडिया ज्वाइन, तो हमें पता है 6 days लेटर, है ना। तो आफ्टर 24 to 30, तो ऑन 30 अक्टूबर 1945 इंडिया ज्वाइंड द UN। ठीक है, नाउ दे वर्क फॉर द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस वर्कड एज UN's पीस कीपिंग फोर्स। ठीक है, हमारे यहाँ की जो सिक्योरिटी है, ये वर्ल्ड की सबसे बेस्ट, सेकंड बेस्ट सिक्योरिटी है हमारे यहाँ की। ठीक है, इंडिया की, तो यहाँ से ये भी प्रोवाइड करवाते हैं। इंडिया हैज़ वर्कड अगेंस्ट रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, आर्म्स रेस एंड यूज़ ऑफ एटॉमिक वेपन्स। इन सब पे उसको क्या है, मना किया गया था। इंडिया हैज़ ऑलवेज सपोर्टेड द यूज़ ऑफ एटॉमिक एनर्जी फॉर पीसफुल पर्पस। हमें हमेशा बताया गया कि नहीं, आपके पास एटम्स ज़्यादा है, वी हैव यूरेनियम 238, अबाउट दैट यू विल लर्न इन हायर क्लासेस व्हाट इज़ दैट। वो उससे बहुत ज़्यादा रेडिएशंस निकलती हैं। तो यूनाइटेड नेशन ने बोल रखा है आप वेपन नहीं बना सकते इससे, बट यू कैन यूज़ इट फॉर वेलफेयर, है ना। आप उससे क्या है, एनर्जी से बिजली भी बना सकते हैं, वी कैन मेक द लाइट, है ना। और भी चीज़ें हैं। तो इंडिया एज ए एक्टिव पार्टनर इन द रिलीफ ऑपरेशंस इन UN। जितना रिलीफ ऑपरेशन का मतलब ये होता है बेटा, किसी भी कंट्री में कोई ट्रेजिडी हुई तो वहाँ रिलीफ कौन पहुँचाते, कुछ सोल्जर्स पहुँचाते हैं ना। तो इसमें हमारा इंडिया हमेशा टॉप पे रहता है। द UN हैज़ ऑलवेज बीन सेंडिंग एक्सपर्ट्स टू अवर कंट्री टू सॉल्व अवर प्रॉब्लम्स। हमेशा उसने भेजे हैं एक्सपर्ट्स हमारी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। तो देखो यहाँ कुछ UN के सेक्रेटरी जनरल्स दिए गए हैं उनका टेन्योर के साथ, जैसे ट्रिगवे ली, है ना, डैग हैमर्सटॉड, फिर यूथांट, कुर्ट वाल्डहीम, जेवियर पियर्स तेस्यलार, बोर्थोस बोर्थोस घाली, है ना, कॉफ़ी ए एनन और बान की मून, है ना। तो रिसेंट कौन है अभी, ये यू हैव टू फाइंड। ठीक है, नाउ व्हाट आर द न्यू टर्म्स दैट वी हैव लर्नड। तो चार्टर, चार्टर बेटा वो होता है रूल्स और रेगुलेशंस जो होता है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, मतलब लिखा हुआ कुछ भी रूल और रेगुलेशन लिखे हुए क्या कहलाते हैं, चार्ट। ह्यूमन राइट्स आप जानते हो, मानव अधिकार मतलब टू प्रोवाइड द फैसिलिटी टू द पर्सन और द ह्यूमन। ठीक है, डिसआर्मामेंट मतलब रिड्यूसिंग द साइज ऑफ आर्म्ड फोर्सेस एंड आर्म्स, जितने भी हथियार हैं और हथियार से ग्रस्त इंसान हैं, है ना, मीन सोल्जर्स हु कैरी द वेपन्स, इन सबको कम करना कि भाई वी वांट द पीस इन द एवरी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, तो नाउ यू कैन सी it is the organization means togetherness of several United Nations which work for the welfare of full country. Okay, so I hope you understand the chapter.
नाउ यू जस्ट हैव टू रीड द चैप्टर फ्रॉम योर बुक ना। आप एक बार रीड करेंगे तो आप और अच्छे से समझ में आएगा। सो थैंक यू एवरीवन।